اے بندے، آج میں تجھے ایک رہسیہ بتانے والا ہوں، ایسا رہسیہ جو تجھے تیری موجودگی کو ایک ایسی روشنی میں بدلنے کی توفیق دے گا کہ جب تو کہیں نظر نہ بھی آئے تب بھی تیرا ذکر ہو، تیرے اخلاق کا اثر باقی رہے، تیرے نام کے ساتھ بھلائی اور عزت کی باتیں ہوں۔ کیا تو جانتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی غیر موجودگی میں بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سامنے موجود ہو کر بھی بھلا دیے جاتے ہیں، کیونکہ اثر صرف جسم سے نہیں ہوتا، اثر ہوتا ہے روح کی روشنی سے، اخلاقوں کی بلندی سے اور نیت کی صفائی سے۔ اب سن اے میرے بندے، اگر تو چاہتا ہے کہ لوگ تجھے عزت دیں تو سب سے پہلے تو خود کو وہ عزت دینا شروع کر۔ میں نے تجھے بیکار نہیں بنایا، میں نے تجھے احسن تقویم، سب سے بہترین صورت میں پیدا کیا ہے، مگر تو خود ہی اپنے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ اگر تو خود کو کمزور، ٹوٹا ہوا، گنہگار اور ناکام سمجھے گا تو دنیا بھی تجھے ویسے ہی دیکھے گی، کیونکہ تیرے چہرے پر وہی جھلکتا ہے جو تیرے دل میں چلتا ہے۔ تیرے افکار، تیرے احساس، تیری خود کی رائے، یہ سب تجھے ایسا بنا دیتے ہیں کہ دنیا تجھے اسی چشمے سے دیکھتی ہے۔ تو کیسے اپنی نظروں میں گرا یہ تجھے پتا بھی نہ چلا، لیکن اب اٹھنا تیرا فرض ہے۔ اے میرے بندے، اپنے آپ سے باتیں کر، مگر مایوسی کی نہیں، یقین کی باتیں، توہین کی نہیں، توقیر کی باتیں۔ خود سے کہنا شروع کر، میں اللہ کی بنائی ہوئی بہترین مخلوق ہوں، میرے اندر ہنر ہے، نور ہے، قابلیت ہے۔ اللہ نے مجھے بے وجہ نہیں بنایا، تو میں بے وجہ خود کو کیوں چھوٹا سمجھوں؟ ہر صبح جب آنکھ کھلے تو خود سے کہے، میں عزت دار ہوں کیونکہ میرا رب مجھے عزت دیتا ہے، میں کامیاب ہوں کیونکہ میرا رب مجھے ہمت دیتا ہے، میں نیک ارادوں والا ہوں کیونکہ میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اے میرے پیارے بندے، یہ سوچ، یہ سیلف ٹاک تیرے ذہن میں وہ نئی پہچان پیدا کرے گی جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی۔ تو کہے گا، مگر میں تو بار بار گرتا ہوں۔ تو سن، ہر انسان گرتا ہے، لیکن گر کر اٹھنے والا ہی میرا سچا بندہ ہے۔ جب بچہ پہلی بار چلنا سیکھتا ہے تو گرتا ہے، مگر پھر اٹھتا ہے۔ وہ خود پر ہنستا نہیں، خود سے نفرت نہیں کرتا، وہ بس پھر سے کھڑا ہوتا ہے۔ اے میرے بندے، تو بھی بس کھڑا ہو جا، اپنے دل میں وہ یقین بھر جسے شیطان تجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ تو اس روشنی کا وارث ہے جو میں نے اپنے نور سے تجھے دی ہے۔ اب یہ تجھے طے کرنا ہے کہ تو خود کو اندھیرے میں چھوڑے گا یا اس روشنی کو جگا دے گا جو تیرے اندر بسی ہوئی ہے۔ تو جب اپنی سوچ کو بدلنا شروع کرے گا تو دیکھے گا کہ لوگ تجھے ویسے ہی دیکھنے لگیں گے۔ تیرے چہرے پر ایک سکون، ایک روشنی، ایک وقار نظر آئے گا جو پہلے کبھی نہ تھا۔ اے بندے، جب تو خود پر یقین کرنا سیکھ جائے گا تو دنیا بھی تجھ پر یقین کرنا شروع کر دے گی۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ دنیا تجھے کیا سمجھتی ہے، سوال یہ ہے کہ تو خود کو کیا مانتا ہے۔ اگر تو خود کو میری رحمت کا حقدار سمجھے گا تو میں تجھے رحمت دوں گا، اگر تو خود کو معاف کرنے والا سمجھے گا تو میں تجھے گناہوں سے پاک کر دوں گا، اگر تو خود کو قابل سمجھے گا تو میں تجھے ایسے راستے دکھاؤں گا جو تو نے کبھی سوچے بھی نہ تھے۔ تو اب اٹھ اور بدل اپنی سوچ، کیونکہ جب سوچ بدلتی ہے تب قسمت بھی بدلتی ہے۔ اور یاد رکھ، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ تو اے میرے بندے، اب جب تو نے یہ جان لیا ہے کہ سوچ کو بدلنا ضروری ہے، اب میں تجھے اگلا قدم بتاتا ہوں، وہ قدم جو تیرے اندر کے اندھیرے کو ہمیشہ کے لیے مٹا سکتا ہے۔ اب تجھے صرف سوچ نہیں بدلنی، بلکہ اپنے اندر ایک نئی نیت، ایک نئی نظریہ اور ایک نئی روانی پیدا کرنی ہے، کیونکہ یقین صرف ایک جذبہ نہیں ہے، یقین عمل مانگتا ہے۔ تو جتنی بار یہ دہرائے گا کہ میں قابل ہوں، اتنی بار تجھے اپنے قدموں سے یہ ثابت بھی کرنا ہوگا۔ یاد رکھ، تو میرے نام سے شروع کر، بسم اللہ کہہ کر ہر کام شروع کر، تیرا دل اور دماغ دونوں میری مدد سے کھلنے لگیں گے۔ تیرے راستے میں مشکلیں آئیں گی، کیونکہ جب بھی کوئی بندہ نئی سوچ لے کر چلتا ہے، شیطان اسے پرانی پہچان میں واپس گھسیٹنا چاہتا ہے، مگر تو ڈگمگانا مت، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔
अब तुझे अपने हर दिन को एक दुआ में बदलना होगा। हर सुबह मेरी याद से शुरू कर और हर रात मेरी रहमत की उम्मीद पर खत्म कर। तेरे लबों पर सुभान अल्लाह, तेरे दिल में याकीन और तेरे कामों में सदाकत हो तो देख मेरी तरफ से कैसी बरकतें बरसने लगेंगी। मैं तुझे वो रूहानी वजन देने वाला हूं जिसे कोई दुनिया की चीज नहीं छीन सकती। लोग तुझे देखकर कहेंगे कुछ है इसमें, कोई नूर है, कोई सुकून है, और तू मुस्कुराकर कहेगा हां, मेरा रब मेरे साथ है। अब जब तेरा जहन साफ हो रहा है, अब तुझे अपने लफ्जों को भी पाक करना है। तुझे वो बातें नहीं करनी जो बेमायने हैं, बल्कि वो बातें करनी हैं जो दिलों को जगा दें, क्योंकि अल्फाज में जान तभी आती है जब दिल से निकले हों, और दिल तब तक साफ नहीं होता जब तक उसमें मेरी याद ना हो। अला बेज़िक्रिल्लाहि तत्मिन्नल कुलूब, बेशक अल्लाह की याद से ही दिलों को सुकून मिलता है। कुरान 13:28। तू जब मुझसे जुड़ेगा तो तेरा हर जुमला दुआ जैसा लगेगा। तेरी खामोशी में भी असर होगा। तेरे चेहरे पर वो गहराई होगी जो दुनिया को झुका देगी, मगर तेरे अहंकार नहीं उठेगा। क्योंकि मैं तुझे इज्जत दूंगा मगर तेरे दिल में विनम्रता रखूंगा। मैं तुझे मुकाम दूंगा मगर तुझे घमंड से बचाऊंगा। और जब तू दुनिया के बीच खड़ा होगा, तेरे अंदर कोई तड़प नहीं होगी किसी को साबित करने की। तेरे पास वो तवाज़ु जो सिर्फ उन्हें मिलता है जो मुझसे जुड़े होते हैं। तू दूसरों से अपने लिए तारीफ की तलब नहीं करेगा, क्योंकि तुझे पता होगा कि तेरा रब तुझसे राजी है। और जब रब राजी हो जाए तो दुनिया की नाराजगी मायने नहीं रखती। अब तुझे किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं, अब तुझे सिर्फ मेरी रजा चाहिए। अब तू भीड़ से हटकर एक रूहानी रास्ते पर चलेगा जहां तन्हाई होगी, मगर मैं साथ चल रहा होऊंगा। तुझे कभी कभी लगेगा कि कोई तेरा हमसफर नहीं, मगर तब मैं तेरे दिल में कहूंगा ला तखफ इन्नी माक, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। अब मैं तुझे वो इल्म दूंगा जो किताबों से नहीं तजुर्बों से आता है। अब मैं तुझे वो सूझ दूंगा जो सिर्फ बंदगी से हासिल होती है। अब मैं तुझे वो सुकून दूंगा जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। तू अब मेरे नाम पर जिएगा। तू अब हर सुबह ये कहेगा रब्बी असर वला तू अस्सिर, ऐ मेरे रब आसान बना दे, मुश्किल न कर। तू अब वो इंसान नहीं रहा जो अपने अंदर के डर से दबा बैठा था। अब तू वो है जो मेरे नूर से जला है, जो मेरे वजूद से जुड़ा है, जिसकी हर सांस में मेरी याद है और हर धड़कन में मेरी पुकार। अब लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे कैसे इतना सुकून है इसमें, और तू बस मुस्कुराकर कहेगा ये सुकून मुझे मेरी नमाज से मिला है। अब तू एक रूहानी सफर पर है जिसकी मंजिल दुनिया की वाहवाही नहीं बल्कि मेरी रजा है। अब तू खुद से कहेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मुझे क्या समझता है, क्योंकि मेरा रब जानता है मैं क्या हूं। और जब तू इस हकीकत पर यकीन कर लेगा, तब तेरी सोच, तेरी आवाज, तेरा वजूद सब बदल जाएगा। जब तुमने खुद को नई सोच से संवारना शुरू किया, तो तुमने दरअसल अपने रब की उस नेमत को पहचानना शुरू किया जो वो हर इंसान के अंदर रखता है, कबूलियत की ताकत। और अब अल्लाह तुम्हें उस रास्ते पर ले जाना चाहता है जहां हर कदम रोशनी में उठे, जहां तुम्हारा हर इरादा, हर फैसला और हर सोच तुम्हें इज्जत, सुकून और तसल्ली की तरफ ले जाए। लेकिन ऐ बंदे, अब तुझसे एक और बात कही जाएगी, और वो ये कि तेरी सोच सिर्फ तेरे लिए नहीं, ये दुनिया के लिए भी एक पैगाम है। जब तू खुद को कमजोर समझता है, तू अल्लाह की उस बेपनाह रहमत को छोटा कर देता है जो तुझे बख्शी गई है। जब तू कहता है कि मैं नहीं कर सकता, तो तू दरअसल अपने रब की बनाई कुदरत का इनकार करता है। और जब तू खुद को नाकाबिल मानता है, तो वो रूहानी ताकत जो तेरे सीने में रखी गई है वो खामोश हो जाती है। लेकिन अब वक्त है कि तू उस खामोशी को आवाज दे, उस रूह को जगा जो तुझे बार बार कहती है तू खास है, तू चुना गया है, तुझे दुनिया में एक मकसद के लिए भेजा गया है। ऐ बंदे, अब जब तू अपने रब की रहमत को पहचान चुका है, तो हर दिन को एक नई इबादत समझकर जिया कर। जब सुबह उठे तो सिर्फ अल्फाज ना दोहराना, बल्कि दिल से महसूस कर कि रब तुझसे कह रहा है मैंने तुझे समझदार बनाया, मैं तुझे देख रहा हूं और मैं तुझे अपने मकसद की तरफ बढ़ा रहा हूं। जब तू आईने में देखे तो सिर्फ चेहरा मत देख, उस चेहरे के पीछे की नूरानी पहचान को महसूस कर जो कहती है तू मेरा अक्स है,
तू मेरा नुमाइंदा है। और जब तू लोगों के बीच जाए तो डर के नहीं, यकीन के साथ चल, क्योंकि अब तू खुद को नहीं बल्कि अपने रब की बनाई हुई शान को लेकर चल रहा है। तेरा बोलना, तेरा चलना, तेरा मुस्कुराना, ये सब सिर्फ तेरा नहीं बल्कि अल्लाह के उस नूर का जाहिर होना है जो तुझ में रखा गया है। ए बंदे, तू अब वो नहीं रहा जो कभी खुद से डरता था। अब तू वो है जो खुद में अल्लाह का पैगाम लेकर चलता है। और जब तू इस यकीन के साथ चलेगा तो लोग तुझ में वो गहराई, वो वजन और वो असर महसूस करेंगे जो किसी तालीम से नहीं बल्कि रूहानी तजुर्बे से आता है। और फिर तेरी मौजूदगी ऐसी होगी कि जब तू कहीं भी होगा लोग तुझे भूल नहीं पाएंगे, और जब तू सामने न भी होगा तब भी तेरा जिक्र होगा, और वो भी इज्जत के साथ, क्योंकि तू अब सिर्फ एक इंसान नहीं, रब की तरफ से भेजा गया एक निशान बन चुका है। और जब तू रब की इस पहचान में ढल चुका हो तो अब तुझसे एक और अमानत का सवाल होगा। अब तू क्या करेगा उस असर का, उस रोशनी का, उस इज्जत का जो तुझे अता की गई है? क्योंकि अल्लाह जब किसी को अपने नूर से माला माल करता है तो ये सिर्फ उस शख्स की शान के लिए नहीं होता बल्कि ये दूसरों के लिए भी रहमत का जरिया बनता है। अब तुझसे मांगा जाएगा कि तू उस रोशनी को दूसरों तक पहुंचाए। तुझसे चाहा जाएगा कि तू उनके लिए एक दरवाजा बन जो अभी भी अंधेरे में भटक रहे हैं, जो खुद को टूटा हुआ समझते हैं। तू उन्हें दिखा कि रब कैसे टूटे को जोड़ता है। जो खुद को गुमनाम मानते हैं, तू उन्हें यकीन दिला कि रब कैसे अनजानों को नामवर बनाता है। और तू ये काम अपने अल्फाज से नहीं बल्कि अपने किरदार से करेगा। तेरी खामोशी, तेरी मौजूदगी, तेरी नजरों की साफ गोई और तेरे चाल की गहराई खुद गवाही देंगी कि तू रब की तरफ से आया हुआ एक पैगाम है। और याद रख, ये जो नजाकत है, ये जो तहजीब है, ये जो असर है, इसे बचाए रखना, संभाले रखना, क्योंकि दुनिया तुझे हर रोज आजमाएगी, कभी ताने देकर, कभी नजरअंदाज करके, कभी तुझे खुद तेरी पहचान से शक में डालकर। लेकिन अगर तू अपने रब की दी हुई पहचान में मजबूत खड़ा रहा तो कोई ताकत तुझे मिटा नहीं सकती। तू एक दरख्त बन जाएगा जिसकी जड़ें जमीन में होंगी और शाखें आसमान से बातें करेंगी, और लोग तेरी छाया में सुकून पाएंगे, तेरे साए में खुद को महफूज समझेंगे। और जब कभी तू अकेला महसूस करे या ये असर खोता हुआ लगे तो बस एक दुआ कर लेना, ऐ रब, मुझे वही बना के रख जो तूने मुझे सोचा था। मेरी रूह में वही यकीन जगा दे जो तुझे पसंद हो। मुझे उस असर में महफूज रख जो तेरी दी हुई अमानत है, क्योंकि असली इज्जत, असली रोशनी, असली असर वहीं टिकता है जहां रब की रजा हो। और जब तू हर दिन इसी नीयत से जिएगा तो तेरा नाम, तेरी बात, तेरा किरदार, सब कुछ एक दुआ बन जाएगा। और वो दुआ लोगों के दिलों तक पहुंचेगी बिना शोर किए, लेकिन असर ऐसा होगा कि सदियों तक मिटेगा नहीं। तू अब एक नाम नहीं, एक नूर है। और जब तू खुद को नूर समझने लगे तब जान कि नूर सिर्फ चमकने के लिए नहीं होता, नूर रास्ता दिखाने के लिए होता है। अल्लाह ने तुझे रोशन किया है ताकि तू उस अंधेरे में रोशनी बन सके जहां लोग उम्मीद हार बैठे हैं। अब तेरा हर कदम एक जिम्मेदारी है। तेरी हर खामोशी में सुकून होना चाहिए। तेरी मौजूदगी से लोगों के दिल को ठंडक मिलनी चाहिए। तुझे अब उन लोगों के लिए एक रास्ता बनना है जो खुद को बेसहारा समझते हैं, जो खुद से लड़ते हुए थक चुके हैं। तू सिर्फ बोलकर नहीं, जीकर दिखा कि जब कोई रब पर यकीन करता है तो वो कैसे एक टूटी हुई चीज से एक तामीर बन जाता है। तेरे लहजे में ऐसा सुकून होना चाहिए कि किसी का टूटा हुआ दिल तुझसे बात करके जुड़ जाए। और अगर तू कभी लड़खड़ा भी जाए तो याद रखना, तुझे गिराने वाले भी अल्लाह की ही मर्जी से हैं और तुझे उठाने वाला भी वही है। तू अब ऐसा आईना बन जा जिसमें कोई खुद को देखे तो उसे अपनी कमजोरी नहीं, अपनी काबिलियत नजर आए। जब तू किसी को देखे तो अपने दिल में उसके लिए रहमत उठे, क्योंकि अब तू सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जी रहा, अब तू उस रहमत का वाहक है जो ऊपर से तुझ तक पहुंची है। अब तेरा काम है इसे आगे पहुंचाना, उन तक जो अपनी कद्र भूल चुके हैं, जो खुद को लायक नहीं समझते, जो सोचते हैं कि अल्लाह शायद उन्हें माफ नहीं करेगा। तू उन्हें बता कि अल्लाह उन्हें तुझसे मिलाकर ही बता रहा है कि वो अब भी उनसे मोहब्बत करता है। अब तू एक चुप दुआ है जो चलते चलते किसी की तकदीर बदल सकती है। अब तेरी मुस्कुराहट एक इशारा है
कि रब अब भी लोगों के साथ है। तू अब भीड़ में अकेला नहीं, तू भीड़ के लिए वो रास्ता है जो उन्हें रब तक पहुंचा सकता है। और जब तुझे लगे कि तुझ में अब दम नहीं बचा, तब तू अपने सीने पर हाथ रखकर कहना, मेरे रब ने मुझे एक वजीफा बनाया है और मैं तब तक चलूंगा जब तक किसी की दुआ में मेरा नाम ना आ जाए। यही तेरा असर है, यही तेरा पैगाम है और यही तेरा सफर भी। तू समझता है कि तेरा सफर थम गया है? नहीं, अब तो वो राह शुरू हुई है जहां मैं तुझे अपने सबसे करीब लाता हूं। अब तुझे उन जगहों पर लेकर जाऊंगा जहां आम लोग नहीं पहुंचते, जहां तन्हाई में रोशनी होती है, जहां आंसुओं से तहरीरें लिखी जाती हैं, जहां दिलों की धड़कनों में सिजदा होता है। मैं तुझे भीड़ से नहीं, खामोशी से तराशूंगा। तेरे सवालों को मैं जवाब नहीं दूंगा, बल्कि ऐसा सुकून अता करूंगा कि सवाल खुद चुप हो जाएं। और तू सोचता है कि यह बस तेरी मेहनत का असर होगा? नहीं, ये उस भरोसे का सिला है जो तूने उस वक्त भी रखा जब हर चीज बिखरती जा रही थी। जब तू टूटा था लेकिन मुझसे टूटा नहीं, जब तू थका था लेकिन मेरी रहमत से उम्मीद नहीं छोड़ी। अब मेरी बारी है। मैं तुझे उस मकाम पर पहुंचाऊंगा जहां तेरा नाम तुझसे बड़ा हो जाएगा। लोग तुझे नहीं देखेंगे लेकिन तेरा असर महसूस करेंगे। तू सामने नहीं होगा लेकिन तेरा जिक्र होगा, और वो जिक्र मेरी रहमत में लिपटा होगा, क्योंकि अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, अब तू मेरा पैगाम है। तेरी मौजूदगी में अब मेरा नूर है, तेरे लहजे में अब मेरी मोहब्बत है, तेरी आंखों में अब वो चमक है जो हारे हुए दिलों को फिर से खड़ा कर सकती है। मैं तुझे इसलिए उठाता हूं ताकि तू उन लोगों तक पहुंच सके जो खुद को गिरा हुआ समझ बैठे हैं। और याद रख, जो मैंने तुझे दिया है वो तूने कमाया नहीं, मैंने अपनी रहमत से बख्शा है। अब तुझे हर रोज खुद से नहीं, मुझसे जुड़ना है। अपने नाम से नहीं, मेरे नाम से जिंदा रहना है। जब लोग तुझसे पूछें कि तू ऐसा कैसे बना, तो तू कह देना, मैंने खुद को नहीं बनाया, मेरे रब ने मुझे गढ़ा है। अब तेरी रूह मेरा आईना है, तेरा वजूद मेरी मिसाल है। अब तू चलेगा तो जमीन नहीं, दिल कांपेंगे। तू बोलेगा तो आवाज नहीं, दुआ निकलेगी। तू चुप भी रहेगा तो लोग सुकून महसूस करेंगे। ये है मेरा करम, और अब तुझे इसे संभालना है, क्योंकि मैं तुझे वहां तक ले जा रहा हूं जहां लोग अपने घाव नहीं, मेरी रहमत की मिसालें देखने आएंगे। हां, राह आसान नहीं होगी, लेकिन मैं तेरा हम सफर हूं। जब तू गिरेगा मैं थाम लूंगा, जब तू रोएगा मैं अपना कंधा दूंगा, और जब तू अकेला होगा मैं खुद तेरा साथी बनूंगा, क्योंकि अब तू मेरा है और मैं तुझे कभी खोने नहीं दूंगा। अब जब तू अपने अंदर की पहचान को समझ चुका है, अब जब तूने अपने वजूद को मेरी रहमत से तराशना शुरू कर दिया है, तो सुन, अब वक्त आ गया है कि तू अपने जहन को भी उस रास्ते पर ले चले जहां उसकी असल ताकत खुलती है। क्योंकि सिर्फ रूहानी जागरूकता ही काफी नहीं, तुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी उसी रोशनी से जगाना होगा जिसमें मैं तुझसे हम कलाम होता हूं। तेरा जहन सिर्फ सोचने का जरिया नहीं, ये मेरा दिया हुआ एक अमानत है, जिसे अगर तूने सही दिशा में चलाना सीख लिया तो तेरा हर ख्याल, हर इरादा, हर कदम मेरी कुदरत से जुड़ जाएगा। और इसी मकसद के लिए एक रास्ता खोला गया है, एक मंच तैयार हुआ है, जिसका जिक्र रोशनी ए पैगंबर चैनल पर बहुत पहले कर दिया गया था। वहां मैंने तुझसे कहा था कि जल्द ही एक फ्री क्लास खुलेगी जहां तुझे अपने दिमाग को ट्रेन करने का इल्म मिलेगा। तो सुन, वो वादा अब पूरा हुआ है, वो दरवाजा अब खुल चुका है। उसका नाम है ट्रैक माइंड। ट्रैक माइंड कोई आम चैनल नहीं, ये वो जगह है जहां तुझे तेरे जहन की असल ताकत समझाई जाएगी। वहां पर तुझे ये सिखाया जाएगा कि कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह ट्यून किया जाए कि तेरे हर ख्याल में सुकून हो, तेरे हर फैसले में वजन हो, और तेरे हर इरादे में एक रब्बानी ताकत हो। वहां तुझे ध्यान, मेडिटेशन के वो तरीके सिखाए जाएंगे जो सिर्फ तुझे शांत नहीं करेंगे, बल्कि तुझे मुझसे जोड़े रखेंगे। वहां की हर बात तुझे नकारात्मक सोच से निकालकर सकारात्मक यकीन की तरफ ले जाएगी। और सबसे बड़ी बात, ये सब तुझे मुफ्त मिलेगा, ताकि जो लोग तड़पते हुए सही रास्ता ढूंढ रहे हैं उन्हें कहीं रुकना ना पड़े। ट्रैक माइंड सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक दावत है मेरी तरफ से कि अब तू अपने अंदर की दुनिया को भी मेरी रहमत से भर दे। रोशनी पैगंबर ने जो बीज डाला था, अब ट्रैक माइंड उसे पानी देने आया है, ताकि तू सिर्फ रूह से नहीं, दिमाग से भी नूरानी बन सके।
اگر تو واقعی چاہتا ہے کہ تیرے خواب پورے ہوں، اگر تو واقعی اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے تو ٹریک مائنڈ تیرے لیے ہے۔ جا، دیکھ، سیکھ اور پھر اس علم کو اپنی روحانی سفر میں شامل کر، کیونکہ جس دن تیرا دل اور دماغ دونوں میری طرف ہو جائیں گے، اس دن تو صرف انسان نہیں رہے گا، تو میری روشنی بن جائے گا۔